السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ پاکستان میں آج یوم پاکستان بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی صدارت میں لاہور میں منعقدہ جلسے میں پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی تھی، جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ اسی نسبت سے ہر سال اس دن یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج یوم پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں پریڈ کے ذریعے دفاعی طاقت کی نمائش کرتی ہیں، تاہم اس مرتبہ موسم کی خرابی کے باعث یہ پریڈ 25 مارچ کو منعقد ہوگی۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایوان صدر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر عارف علوی نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو قومی اعزازات اور میڈلز سے نوازا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں قانون کی حکمرانی، مساوات اور ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح ایک انسانی، ترقی پسند اور خوشحال ریاست بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پاکستانی ہم منصب عارف علوی کے نام خط میں یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے اعادہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ مسائل، بالخصوص افغانستان میں امن، کورونا وائرس کی وبا اور موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط باہمی دفاعی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ بات افغانستان کے دورے سے واپسی کے دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہی۔ آسٹن اور باجوہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں پاکستانی فوج کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان اس بات کا مظہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی کا جائزہ لے رہی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے نئی دہلی میں ملاقات کی ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے علاوہ دیگر متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ بھارت کے 3 روزہ دورے پر پیر کی شام نئی دہلی پہنچے تھے۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا 9واں اجلاس 30 مارچ کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ہو رہا ہے۔ کانفرنس میں رکن ممالک کے اعلیٰ سفارتکار اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قریباً 2 سال کے بعد بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کا سامنا کریں گے۔ دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ دوشنبہ میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے مابین غیر رسمی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی قیاس آرائیوں کے باوجود دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ نے تاحال اس ملاقات سے متعلق کوئی تصدیقی یا تردیدی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کا قیام سن 2011 میں ترکی کے شہر استنبول میں ہوا تھا۔ یہ تنظیم 15 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں افغانستان، آذربائیجان، چین، ایران، قزاقستان، کرغزستان، پاکستان، روس، سعودی عرب، بھارت، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان، متحدہ عرب امارات اور ازبکستان شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ خاص طور پر اپنے نیٹو اتحادیوں سمیت دنیا بھر میں شراکت داری کو اثر نو استوار کرنے کے عزم پر قائم ہے۔
वो ब्रसल्स में नेटो के वज़राए ख़ारजा के इजलास से कबल नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग के हमरा सहाफ़ियों से बातें कर रहे थे। ब्लिंकन ने कहा कि अफ़गानिस्तान से 1 मई तक तमाम अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुलाने के समझौते पर नज़र षानी की जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा से इस बारे में तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौजी इनखला के बारे में हतमी फ़ैसला करने से कबल अमरीका अपने इत्तेहादी ममालिक से सलाह मशवरे करेगा। जनूबी बांग्लादेश में रोहिंग्या पनागुज़ीनों के एक बड़े कैंप में शदीद आग भड़क उठी, जिसमें कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों पनागाहें तबाह हो गईं। आग दोपहर के वक्त लगी थी और रात तक भड़कती रही। हज़ारों पनागुज़ीन अपने ठिकानों से महरूम हो गए हैं। एक प्रेस बयान के मुताबिक यूनिसेफ के कारकुन बांग्लादेश में रोहिंग्या पनागुज़ीन कैंप में आग लगने के मौके पर पहुंच गए हैं ताकि मकामी हुक्काम को इमदाद और बाजियाबी की कोशिशों में मदद फराहम करें। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 1200 पनागाहें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 10,000 अफराद को स्कूलों में पनाह दी गई है। यूनिसेफ ने कहा है कि आग की वजह से बेघर होने वाले बहुत से अफराद को वहां से निकाल लिया गया है, ताहम तबाही की मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। बांग्लादेश ने 10 लाख से जायद रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दी है, जो हमसाया म्यांमार से भागकर यहां पहुंचे थे। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में पुलिस का कहना है कि एक सुपरमार्केट में शूटिंग के वाक़े में एक पुलिस ऑफिसर समेत 10 अफराद हलाक हो गए हैं। बोल्डर पुलिस कमांडर मैरिस हेरल्ड ने पीर के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है, जो ज़ख्मी था और उसका इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो अभी छानबीन कर रहे हैं कि इस शूटिंग के पीछे क्या मुहर्रिक था। फायरिंग का वाक़या पीर को रियासत कोलोराडो की बोल्डर काउंटी में पेश आया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ओवरसाइट कमेटी ने पीर के रोज़ वाशिंगटन डीसी को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने से मुताल्लिक़ एक बिल की समाअत की। ये बिल गुज़श्ता बरस ऐवान में पास हो गया था, मगर रिपब्लिकन गलबे वाली सेनेट में इसे मंजूर नहीं किया गया। अमरीकी दारुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया 1790 में अमरीकी रियासत वर्जीनिया और मैरीलैंड के दरमियान ज़मीन के गैर आबाद टुकड़े पर कायम किया गया था और बाद में कुछ अरसे तक इसे फेडरल सिटी का नाम दिया गया। 7 लाख की आबादी वाले अमरीकी दारुल हुकूमत को रियासत का दर्जा मिल गया तो उसके 2 सेनेटर्स होंगे और 1 रुकने कांग्रेस। मगर डीसी में डेमोक्रेट्स की बेहद हिमायत की वजह से रिपब्लिकन्स इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और सेनेट में इस बिल को कानून का दर्जा देने के लिए 8 रिपब्लिकन सेनेटर्स की हिमायत दरकार होगी, जबकि इस वक्त दोनों पार्टियों के 50-50 सेनेटर्स हैं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने चीन के कई ओहदेदारों पर उइग़ुर मुसलमानों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाबंदियों का ऐलान किया है। उइग़ुर मुसलमान चीन के सिंकियांग सूबे में आबादी का अक़लियती गिरोह हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियां उसके इत्तेहादियों के साथ यकजहती का इज़हार हैं। ब्लिंकन का कहना था कि हमारे शराकतदारों ने सिंकियांग और दीगर ममालिक में इंसानी हुकूक पामाल करने और दीगर ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ करने वालों के ख़िलाफ़ भी इक़दाम किए हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने पीर के रोज़ चीन के 2 ओहदेदारों के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया था, जिनमें सूबे सिंकियांग में पार्टी के साबिक़ नायब सेक्रेटरी वेंग येंस हैंग और सिंकियांग के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर चेन मिन ग्वा शामिल हैं। उधर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने अपने इजलास में चीन के साथ साथ म्यांमार और रूस के ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ आयद की हैं। यूरोपीय यूनियन मुल्कों के 27 रुकनी ब्लॉक ने उइग़ुर मुसलमानों पर चीन के जबरो इस्तेदाब की वजह से चीन के ओहदेदारों और सरकारी तहवील में चलने वाले एक इदारे पर वज़राए ख़ारजा के इजलास में पाबंदियों की मंजूरी दी। ये पहली दफ़ा है कि यूरोपीय यूनियन ने चीन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाबंदियाँ आयद की हैं। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने ख़बरदार किया है कि वो सूबे सिंकियांग में अपने इक़दामात पर कोई पाबंदी किए जाने पर सख्त रद्द अमल का इजहार करेगा। पाबंदियाँ आयद करने के इक़दामात का आगाज़ इस माह किया गया था, जब रूस में
अपोजिशन रहनुमा एलेक्सी नावेल्नी को बेजा जेल में बंद करने पर 4 रूसी अहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद की गई थीं। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का कहना था कि रूस के मज़ीद अफराद पर पाबंदियां चेचनिया के इलाके में हुकूक की पामालियों पर आयद की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार में फौजी बगावत और मुजाहिरीन की मुतशद्दिद पकड़ धकड़ में मुलव्वस 11 अहदेदारों पर भी पाबंदियां आयद की हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जो कुछ म्यांमार में हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन का कहना था कि म्यांमार की फ़ौज के साथ कारोबारी लेन देन पर भी आइंदा हफ्तों में पाबंदियां लगने का इम्कान है। सऊदी अरब ने पीर के रोज़ यमन के हौसी बागियों को जंगबंदी की पेशकश की है, जिसके तहत यमन के दारुल-हुकूमत में एक अहम हवाई अड्डे को खोलने की इजाज़त भी दी जाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने रियाद से एक टेलीफोन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि अब हौसियों पर मुनहसर है कि वो क्या कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हौसियों को फैसला करना होगा कि वो अपने मफादात को तरजीह देंगे या ईरान के मफादात को। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यमन के हौसियों ने फौरी तौर पर इस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से यमन जंग के मुताल्लिक़ बातचीत की है और वो ऐसी तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं जिससे यमन में जंग बंद हो, तमाम फरीक जंगबंदी की पाबंदी करें ताकि इमदादी सामान शहरियों तक पहुंचने में आसानी पैदा हो सके। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस हुक्काम ने मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। पीर को वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कोरोना केसेस पर बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया है। एनसीओसी के एलामिया के मुताबिक रेस्तरानों में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। ज़रूरी अशिया के अलावा दीगर कारोबार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। एनसीओसी के मुताबिक सिर्फ 300 अफराद को कोरोना एसओपीज़ के तहत खुले मकामात पर जमा होने की इजाज़त होगी। अलबत्ता हर किस्म की इंडोर मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। नई पाबंदियों के तहत पार्क्स, तफरीही मकामात, जॉगिंग ट्रैक्स और सिनेमा घर बंद रहेंगे। अमरीकी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) ने पीर के रोज़ बताया है कि इतवार को अमरीकी हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग से 15 लाख मुसाफिर गुजरे, जो मार्च सन 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा तादाद है। 13 मार्च सन 2020 के बाद इतवार के रोज़ 1.54 मिलियन अफराद ने सफ़र किया और ये मुसलसल 11वां दिन था जब ये तादाद 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई। 13 मार्च वो दिन था जब गुज़श्ता साल अमरीका ने कोरोना वायरस की वबा को कौमी सतह पर हंगामी सूरत हाल करार दिया था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडस्ट्री ट्रेड ग्रुप एयरलाइंस फॉर अमेरिका के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुल्क के अंदर फ़ज़ाई सफ़र कोरोना वबा के आगाज़ की शरह के मुकाबले में 47% कम रहा, जबकि आलमी सतह पर फ़ज़ाई सफ़र की मांग में 68% कमी हुई। पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल केस में कैद रहने वाले अहमद उमर शेख को कराची सेंट्रल जेल से उनके आबाई शहर लाहौर मुंतकिल कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि उन्हें सख्त सिक्योरिटी में एक घर में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केस में 4 अफराद को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। ताहम हुकूमत के मुताबिक ये 4 अफराद इंतहाई ख़तरनाक हैं जो मुल्की सालमियत के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आज़ादा घूमने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।